नमस्ते बच्चों। लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। आप सभी का हमारे सैटरडे स्टोरी सेशन में तहे दिल से स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले हफ्ते का सेशन जरूर देखा होगा और आपको ये हमारे मजेदार और सीखने वाले सेशंस पसंद भी आ रहे होंगे। जैसा कि हर बार होता है, आज भी हम लेकर आए हैं कुछ नया और कुछ मजेदार। लेकिन सोचो जरा, इस बार रिंकी के मन में कौन सा नया सवाल आया होगा और आज हम किस बारे में सीखेंगे और जानेंगे। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आज की कहानी में। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सैटरडे स्टोरी सेशन। रिंकी बेटा, क्या सोच रही हो? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने के बाद ये खाना कहाँ जाता होगा। इतना ही नहीं, मेरा शरीर आखिर कैसे काम करता है। अरे वाह रिंकी, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने तो। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें इन सारे सवालों के जवाब हैं। वाह, कहानी! और उसमें इन सारे सवालों के जवाब भी है। हाँ। The word inside the body. Tara was a curious girl who always asked a lot of questions, like how does my heart beat and where do thoughts come from? One night, while reading a science book, she wished she could explore her own body. Suddenly, a golden light filled her room, and a tiny glowing nanobot named Bobo appeared. Before Tara could say anything, she had shrunk to the size of jelly bean. Hop in, he said, pointing to a floating pod. You are about to take the most exciting journey inside you. First stop, the heart. The pod zoomed into a giant red pulsing chamber. Thump, thump, thump. This is your heart, said Bobo. It's a strong muscle that pumps blood everywhere. Tara watched with wonder as it squeezed and relaxed. She saw red blood cells carrying oxygen and nutrients through tubes called arteries and veins. Wow! Tara whispered, "My heart is like a superhero delivery machine." Second stop, the lungs. Next, they floated into two big, soft rooms, the lungs. As Tara breathed in, fresh air rushed in and filled tiny balloons called alveoli. This is where oxygen goes into your blood, Bobo explained. And when I breathe out? Tara asked. Your lungs push out carbon dioxide, the stuff your body doesn't need, said Bobo. Tara gave her lungs a thumbs up. You are amazing! Third stop, the brain. Lights flashed like tiny shooting stars. Your brain sends message really fast, Bobo said. It controls your thoughts, movements, feelings, and even your dreams. Tara saw tiny helpers called neurons passing messages to each other like a quick relay race. So when I remember anything from my book or feel happy, it's because of my brain. Exactly, Bobo smiled. Final stop, the stomach. With a gurgle and a giggle, the pod landed in Tara's squishy, bubbling stomach. Gross, but cool. She laughed, watching food get mashed and mixed with juices. Your stomach breaks food into tiny bits, Bobo explained. Then your intestines absorb the good stuff and send it into your blood. So that's where my sandwich went, Tara said, spotting breadcrumbs vanishing into tiny doors in the stomach wall. Time to go back. Just then, the pod began to glow again. Time to head back, said Bobo. Quickly, Tara was back in her bed, full-sized,
holding her science book. She blinked. Was that real? She whispered. But on her pillow lay a tiny card. Thanks for visiting your amazing body. Bobo the nanobot. Tara smiled and whispered, Thank you, body. You're the coolest machine ever. रिंकी बेटा, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले? हाँ पिताजी, लेकिन कुछ कठिन शब्दों की वजह से मुझे कहानी पूरी तरह से नहीं समझ आई। तो क्या आप मुझे कहानी हिंदी में भी सुनाओगे? हाँ, बताता हूँ ना, और कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाता हूँ। हाँ पिताजी। The world inside the body. यानी शरीर के भीतर की दुनिया। Tara was a curious girl who always asked a lot of questions like how does my heart beat and where do thoughts come from? तारा एक जिज्ञासु लड़की थी, बिल्कुल ही तुम्हारे जैसी, और हमेशा तुम्हारे जैसे ही बहुत सवाल पूछती थी। मेरा दिल कैसे धड़कता है और विचार कहाँ से आते हैं? One night, while reading a science book, she wished she could explore her own body. एक रात विज्ञान की किताब पढ़ते हुए उसने सोचा, काश वो अपने शरीर के अंदर जा पाती। Suddenly, a golden light filled her room, and a tiny glowing nanobot named Bobo appeared. अचानक उसके कमरे में सुनहरी रोशनी छा गई और एक छोटा बोबो नाम का चमकता हुआ नैनोबॉट दिखाई दिया। Before Tara could say anything, she had shrunk to the size of a jelly bean. तारा कुछ बोले उससे पहले ही वो जेलीबिन जितनी छोटी हो गई। Hop in, he said, pointing to a floating pod. You are about to take the most exciting journey inside you. चढ़ जाओ, उसने तैरते हुए एक पॉड की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम अपने जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा पर जा रही हो, अपने भीतर। फर्स्ट स्टॉप, द हार्ट। पहला पड़ाव, हृदय। द पॉड zoomed into giant, red, pulsing chamber. थम 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 थम। पॉड एक विशाल, लाल, धड़कते हुए कक्ष में चला गया। धक धक। This is your heart, said Bobo. It's a strong muscle that pumps blood everywhere. बोबो ने कहा, ये तुम्हारा हृदय है। ये एक मजबूत मांसपेशी है जो पूरे शरीर में खून पंप करता है। तारा watched with wonder as it squeezed and relaxed. तारा हैरानी से देखती रही जब हृदय सिकुड़ता और फिर ढीला पड़ता। She saw red blood cells carrying oxygen and nutrients through tubes called arteries and veins. उसने देखा कि लाल रक्त कण ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को धमनियों और शिराओं नामक नलियों के जरिए ले जा रही है। वाओ! तारा whispered, My heart is like a superhero delivery machine. वाह! तारा ने धीरे से कहा, मेरा हृदय तो एक सुपर हीरो डिलीवरी मशीन जैसा है। सेकेंड स्टॉप, द लंग्स। दूसरा पड़ाव, फेफड़ा। नेक्स्ट, they floated into two big soft rooms, the lungs. उसके बाद वो दो बड़े स्पंज जैसे कमरों में पहुंची, यानी कि फेफड़ों में। As Tara breathed in, fresh air rushed in and filled tiny balloons called alveoli. जब तारा ने सांस ली तो ताजी हवा अंदर गई और छोटे गुब्बारों जैसी एल्वियोलाई को भर दिया। This is where oxygen goes into your blood, Bobo explained. और यहीं पर ऑक्सीजन तुम्हारे खून में मिलता है, बोबो ने समझाया। And when I breathe out, तारा asked. और फिर तारा ने पूछा, और जब मैं सांस छोड़ती हूँ तब क्या होता है? Your lungs push out carbon dioxide, the stuff your body doesn't need, said Bobo. और बोबो ने आगे कहा, तुम्हारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जिससे तुम्हारा शरीर नहीं चाहता। तारा gave her lungs a thumbs up. You are amazing. तारा ने अपने फेफड़ों को थम्स अप दिया। तुम कमाल हो। थर्ड स्टॉप, द ब्रेन। तीसरा पड़ाव, मस्तिष्क। लाइट्स फ्लैश्ड लाइक टाइनी शूटिंग स्टार्स। रोशनी छोटे छोटे टूटते तारों की तरह चमक रही थी।
योर ब्रेन सेंड्स मैसेज रियली फास्ट, बोबो सेड। बोबो ने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क बहुत तेजी से संदेश भेजता है। इट कंट्रोल्स योर थॉट्स, मूवमेंट्स, फीलिंग्स, इवन योर ड्रीम्स। ये तुम्हारे विचारों, हरकतों, भावनाओं, यहाँ तक कि सपनों को भी नियंत्रित करता है। तारा saw tiny helpers called neurons passing message to each other like a quick relay race. तारा ने छोटे सहायक देखे जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, जो एक दूसरे को बहुत तेजी से संकेत भेजते हैं, जैसे कोई रिले रेस हो। So when I remember anything from my book or I feel happy, it's because of my brain. और जब मैं अपनी किताब में से कोई चीज याद करती हूँ या फिर खुशी महसूस करती हूँ, तो क्या वो सब मस्तिष्क की वजह से होता है? एग्जैक्टली, बोबो स्माइल्ड। बिल्कुल सही कहा, बोबो मुस्कुराकर बोला। फाइनल स्टॉप द स्टमक। आखिरी पड़ाव पेट। With a gurgle and giggle, the pod landed in Tara's squishy, bubbling stomach. गड़गड़ाहट और हंसी के साथ पॉड तारा के मुलायम और बुलबुलों वाले पेट में उतर गया। She laughed, watching the food get mashed and mixed with juices. वो भोजन को मसल कर रस में मिलाते हुए देखकर हंसने लगी। Your stomach breaks food into tiny bits. बोबो explained. बोबो ने समझाया कि तुम्हारा पेट खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। Then your intestine absorbs the good stuff and send it into your blood. और फिर तुम्हारी आंतें जरूरी चीजें सोख कर खून में भेज देती है। So that's where my sandwich went, Tara said, spotting breadcrumbs vanishing into tiny doors in the stomach wall. जब उसने ब्रेड के कुछ टुकड़े पेट की दीवार में बने छोटे दरवाजों में गायब होते देखा, तो तारा ने कहा, अच्छा, मेरा सैंडविच यही गया था। टाइम टू गो बैक, यानी कि जाने का समय हो गया है। Just then the pod began to glow again. Time to head back, said बोबो। तभी पॉड फिर से चमकने लगा। अब वापस जाना होगा, बोबो ने कहा। Quickly, Tara was back in her bed, full-sized, holding her science book. पल भर में तारा अपने बिस्तर पर थी, अपने असली आकार में, हाथ में विज्ञान की किताब लिए हुए। She blinked. Was that real? She whispered. उसने पलकें झपकाई। क्या वो सब सच था? उसने धीरे से कहा। But on her pillow lay a tiny card. लेकिन उसके तकिए पर एक छोटा सा कार्ड रखा था। Thanks for visiting your amazing body, बोबो द नैनोबॉट। अपने अद्भुत शरीर में आने के लिए धन्यवाद, बोबो द नैनोबॉट। तारा smiled and whispered, Thank you body, you are the coolest machine ever. तारा मुस्कुराई और धीरे से बोली, धन्यवाद मेरे शरीर, तुम सबसे कमाल मशीन हो। अब आइए इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थों पर जरा नजर डालते हैं। पहला है ग्लोइंग, ग्लोइंग यानी कि चमकता हुआ। अगला है श्रंक, यानी कि सिकुड़ गई या फिर छोटा हो जाना। अगला है फ्लोटिंग, यानी कि तैरता हुआ या फिर हवा या पानी में लहराता हुआ। अगला है विस्पर्ड, यानी कि फुसफुसाया, धीरे से कहा। अगला है डिलीवरी मशीन, यानी कि सामान पहुंचाने वाली मशीन। अगला है फ्रेश, यानी कि ताजा। अगला है मैश्ड, यानी कि मसलना या फिर कुचलना। अब समझ में आई ना तुम्हें यह कहानी और उसमें जो कठिन शब्द थे? हाँ पिताजी। कहानी तो तुम्हें सही से समझ में आ गई, तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी? क्या पिताजी? मैं तुम्हें शरीर के अंगों के नाम बताऊंगा, तुम्हें उन अंगों का काम बताने वाले वाक्य के साथ उनकी जोड़ी मिलानी है। ठीक है पिताजी, मुझे ये खेल बहुत पसंद है। चलो दोस्तों, आप भी मेरी इसमें मदद करो। पहला है मैच द फंक्शन और बॉडी पार्ट है हार्ट, एंड द राइट आंसर इज पंप्स द ब्लड। दूसरा है लंग्स,
takes in oxygen. Next, brain. Sends message and controls everything. Next, stomach. Breaks down food. And 5, intestine. Absorbs nutrients from food. तो बताओ, एक्टिविटी करते वक्त मजा आया ना? हाँ पिताजी, बहुत 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 मजा आया। हाँ, और तुम्हें नई जानकारी के साथ साथ नए शब्द भी समझ में आए। हाँ पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है रिंकी। बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको भी मजा आया ना? आज के सेशन में हमने रिंकी के दिलचस्प प्रश्नों के उत्तर को जाना। इस कहानी से हमने कुछ नए और कठिन शब्द सीखे और कहानी का अर्थ भी समझा और मजेदार गतिविधियां भी की। हर शनिवार हम इसी तरह की नई कहानी लेकर आएंगे। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए आपका पसंदीदा सैटरडे स्टोरी सेशन।